afternoon, dear students. How are you all doing? Good. Now let's start and continue with the chapter of ITC. बात नहीं करेगा कोई भी, अपने नोट्स खोलेंगे और मुझे बताइए नोट्स पे हम वो टेबल कर रहे थे जो कौन सी पेज पे है. हम लोग ब्लॉक क्रेडिट सीख रहे थे, सो यू हैव टू कंटिन्यू विद द ब्लॉक क्रेडिट का टेबल. सो दैट टेबल इज ऑन पेज नंबर 265. सो प्लीज ओपन पेज 265 स्टूडेंट्स ऑफ योर नोट्स. बिल्कुल बातें नहीं करेंगे और अच्छे से हम लोग अभी ये आगे सॉल्व करेंगे. ना 18 तक सॉल्व हो गया था, 19th to 23, 19 to 23 जल्दी से सॉल्व कर दो. 19 to 23 जल्दी से सॉल्व कर दो. आईटीसी मिलेगा या आईटीसी नहीं मिलेगा. सो सॉल्व इट क्विकली फ्रॉम 19 to 23. नाइनटीन टू 23 कर दीजिए प्लीज. डन है, करें चेक. CD and Company contractor of Noida has been awarded a contract for construction of a commercial complex in Lucknow. The firm avails services of EF and Company, a local works contractor of Lucknow, for construction of complex. ITC for such contract services क्या होगा? It will be allowed or it will not be allowed? It will be allowed because you're providing same, you're using the inputs for providing the same output services. So if works contract आपका input है और वही आपका output भी है, then it is definitely allowable. Okay, so here we'll say ITC is allowed. ITC is allowed. आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कब अलाउ होता है. देखिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में if it is used for further supply of works contract services, right? So दिया हुआ है it is going to be allowed. So write down ITC is allowed because it is used for, मैं dictate कर रही हूँ तो लिखिए ITC is allowed because it is used for further supply, it is used for further supply of works contract service. Because it is used for further supply of works contract service. It is used for further supply of works contract service. Correct? Is that clear? Correct है? आगे. ITC on works contract services availed by an automobile company for construction of a foundation on which machinery which is going to be used in the production is to be mounted permanently. Now मैंने कल भी बताया था अगर if your works contract results in construction of immovable property it is not eligible for ITC, then it becomes a block credit. कौन सा works contract used for constructing of a immovable property is a block credit. However, credit will be allowed if this property is a plant and machinery. तो अगर प्लांट एंड मशीनरी के माउंटिंग के लिए आपने कुछ बेस बना दिया और उसके ऊपर मशीनरी लगा दी तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये एक अलावेबल क्रेडिट होता है. अगर आप उसके एक्सेप्शंस में देखोगे तो एक्सेप्शंस दिए हुए फर्दर सप्लाई एंड इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ प्लांट एंड मशीनरी. हाउ डिड प्लांट एंड मशीनरी बिकम इमूवेबल? इट बिकेम इमूवेबल बिकॉज इट गॉट अटैच्ड टू द अर्थ विद द हेल्प ऑफ दैट फाउंडेशन जो बनाया आपने और उसके ऊपर ये मशीनरी किया माउंट. ओके, सो यहाँ पे होगा ITC इज अलाउड. ITC इज अलाउड. 20 का आंसर आपका क्या आया वैसे? हाँ, आपका आंसर भी अलाउड ही आया. सही बात है. चलो, ITC इज अलाउड when the immovable property, ITC is allowed when the immovable property is plant and machinery. ITC is allowed when the immovable property is plant and machinery. So will the ITC be allowed? Yes, the ITC will be allowed when the immovable property is plant and machinery. Is that clear to everybody? Yes? Okay. Moving ahead.
ITC 21. ITC on works contract services availed by a manufacturing company for construction of pipelines to be laid outside its factory. कुछ भी नहीं, इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दो ही सिचुएशन में अलाउ होगा, व्हेन इट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी, बाकी सब केसेस में वो अलाउड नहीं है, इट इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. बरोबर बरोबर. सो आईटीसी इज ब्लॉक्ड क्रेडिट. ITC is a blocked credit. करेक्ट है क्या? ITC is a blocked credit. Is that clear to everybody? Yes. करेक्ट. कल कोई इजी लैंग्वेज में समरी बना के लाएगा ब्लॉक क्रेडिट के लिए? लाइक motor vehicle up to 13 seater is a block credit. Motor vehicle used for transportation of goods is eligible for credit. ऐसे 1 2 3 4 कोई बना के लाएगा ऐसे समरी, तो मैं चेक कर दूंगी. इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट आई विल पुट इट ऑन द ग्रुप. तो आपके नाम के साथ ही आप बना के दे दो मुझे, तो फिर मैं चेक कर दूंगी और ओके होगा तो ग्रुप पे डाल देंगे. तो एक समराइज्ड इजी लैंग्वेज में देखने के लिए यूजफुल हो जाएगा सबके लिए. डन है? कौन बनाएगा? तुम ही बोलो. खुद ही मानता है किसी लड़की को जो हैंड राइटिंग अच्छी होती है, लड़कियां सिंसियर होती है, खुद ही मान लिया उसने. चलो अच्छी बात है. हर एक वो बोल रहा है और दो बच्चों को देंगे ना तो दोनों का डाल देंगे. ये कर रहा है और कौन वॉलंटियर कर रहा है? एनीबडी इज वॉलंटियरिंग? तू करने वाला है? तू कर देगी, ठीक है. तो 2 बच्चे करके आ रहे हैं. हाँ हाँ. इग्नोर इग्नोर, यहाँ से सुनने का, यहाँ से छोड़ देने का. हाँ चलो क्वाइट. हाँ फोकस करो प्लीज. लेट्स अंडरस्टैंड. बी क्वाइट एवरीबडी, कम ऑन. आईटीसी पाइपलाइंस वाला आईटीसी इज अ ब्लॉक्ड क्रेडिट. डन है ये? उसके आगे अ कंसल्टिंग फर्म हैज अवेल सर्विसेज ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयर. अब ये ध्यान से देखना, अब मैं बोलूँगी 1 मिनट, आपका आंसर जो भी आपने दिया होगा आई वॉन्ट यू टू रीड अगेन. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड 2 पॉइंट्स है, आई वॉन्ट यू टू रीड इट अगेन एंड इफ यू वॉन्ट यू मे चेंज योर आंसर. KYN करके मुझे आंसर चाहिए प्लीज. पढ़ने के बाद किसी ने आंसर चेंज किया? ये ऑलरेडी आंसर करेक्ट था. जो सोचा था वही था. देखो यहाँ क्या है, मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ से. हियर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रिपेयर मेंटेनेंस एंड रेनोवेशन टू द एक्सटेंट इट इज कैपिटलाइज्ड. अगर रिपेयर मेंटेनेंस मैंने कैपिटलाइज नहीं किया, लाइक पेंटिंग का काम करवाया, थोड़ा सा मैंने पूरा ऑफिस रेनोवेट नहीं किया, नॉट कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, छोटा मोटा कुछ रिपेयर का काम था तो वहाँ से हमने कुछ काम कर दिया, उसके रिपेयर के काम के लिए भी GST लग गया. अब ये जो है रिपेयर्स मैंने इसको कैपिटलाइज नहीं किया. अरे थोड़ा पेंटिंग करवा लिया एक ही क्लासरूम का, ऐसा नहीं कि हमने पूरा का पूरा इंटीरियर चेंज कर दिया. तो टू सम एक्सटेंट आई कैन कैपिटलाइज सम थिंग्स, आई कैन कैपिटलाइज एवरीथिंग. हाँ बेंचेस नए खरीद लिए तो बेंचेस हम कैपिटलाइज कर पाएंगे, लेकिन कुछ और काम है, छोटा मोटा रिपेयर का काम करवाया तो उसके लिए हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे. जो कैपिटलाइज नहीं करेंगे वो ब्लॉक क्रेडिट नहीं है, तो उसका ITC आप क्लेम कर सकते हो. तो ब्लॉक क्रेडिट की लिस्ट में क्या दिया है? सच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट यूज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कैपिटलाइज होना चाहिए. हाँ इंक्लूडिंग रिपेयर मेंटेनेंस रेनोवेशन इफ दैट इज ऑल्सो कैपिटलाइज. अगर रिपेयर मेंटेनेंस रेनोवेशन कैपिटलाइज नहीं है, PNL में रेवेन्यू खर्चा दिखाया, तो प्लीज उसके ऊपर जो GST पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा. सो सी हुएवर इज मेकिंग द 2 ऑफ यू द लिस्ट, मुझे ऐसा चाहिए अलग अलग सेंटेंस. मुझे ना कॉम्प्लिकेटेड बड़े सेंटेंसेस नहीं चाहिए. आई वॉन्ट लाइक दिस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज a block credit, but works contract for further supply of works contract is a eligible credit. Works contract resulting in construction of a immovable property which is plant and machinery is a eligible credit.
works contract like repairs maintenance which is not capitalized is a eligible credit. ऐसे simple languages में simple एक लाइनर के sentences चाहिए, ठीक है? ओके ठीक है, अब देखो आगे सुनो। हाँ तो ये क्या होगा बच्चा लोग, ये क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा 22 क्या एलिजिबल या ब्लॉक क्रेडिट? एलिजिबल, इट इज़ फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। ये P&L को डेबिट किया है, अगर कैपिटलाइज किया होता है तो ब्लॉक क्रेडिट होता है। दिस इज एलिजिबल ITC, दिस इज एलिजिबल ITC, ये क्या है एलिजिबल ITC है। आगे, a telecommunication company has availed services of a works contractor for repair of its office building. The company has capitalized such expenditure. देखो company has capitalized. Now this ITC is a block credit. शाबाश, very good. मैं नॉर्मली हर बैच में ITC का जो चैप्टर होता है यूट्यूब पे पूरा का पूरा चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगी, बिकॉज ITC इज़ थोड़ा आगे वाला पार्ट आपको समझेगा जब मैं अभी पढ़ाऊंगी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, तो इसके लिए मैं पूरा का पूरा ITC लेक्चर विल बी देयर ऑन यूट्यूब, आई विल बी अपलोडिंग इट, सो वेन एवर यू स्टडी इट वॉचिंग दैट लेक्चर। यस, ITC के बाद 24 अ कंपनी बाय सीमेंट। हाँ अभी 24 से 28 तक आप करो, 24 to 28 आप करो, चलो जल्दी करो। देखो इनपुट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे बात हो रही है ना, अच्छे से देख लो एक बार। डन है क्या? पढ़े कहाँ से कहाँ तक किया आपने? 24 से 28 तक, ओके राइट। अ कंपनी बाय सीमेंट टाइल्स एक्सेट्रा अवेल्स द सर्विसेज ऑफ, ये है ना 24, हाँ, अवेल्स द सर्विसेज ऑफ एन आर्किटेक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स ऑफिस बिल्डिंग। खुद का ऑफिस बिल्डिंग, मैंने पहले ही बोला कुछ भी हो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो भी इनपुट्स है ऑल आर ब्लॉक क्रेडिट, करेक्ट? सो दिस इज ब्लॉक क्रेडिट, blocked credit. So is it a block credit? Yes, it's a block credit. आगे, MN and constructions procure cement, paint, iron, rod, services of architects and interior designers for construction of a commercial complex for one of its clients. For one of its clients. पढ़ लीजिए आप, ऊपर देख लीजिए एक बार, पढ़ो ना। इज इट फॉर फर्दर सप्लाई? येस, एंड इवन यहाँ पे देखो दिया है, मैं आपको दो रीजंस बोलती हूँ क्यों इट इज ऑफकोर्स अलाउेबल है। हाँ देखो यहाँ क्या दिया है, ऑन ओन अकाउंट, ये देखो, ये देखो, इनवर्ट सप्लाईज रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद के लिए कंस्ट्रक्ट किया तो ब्लॉक क्रेडिट है। आर्किटेक्ट किसी और को आपने दिया, वो कंस्ट्रक्ट करके आपको दे रहा है, देन दिस इज एन अलाउेबल क्रेडिट, देन इट इज अ एलिजिबल क्रेडिट। डू यू अंडरस्टैंड? एंड इट्स अ फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी मच एन एलिजिबल क्रेडिट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट नंबर है, 24, 25, ओके। MN Constructions procures cement, paint, iron, rod, services of architect
and interior designers for construction of a commercial complex for one of its clients. Is it for their own account? It's not for their own account. ऊपर देखो वो word क्या important है, on own account. Please understand वहाँ word क्या दिया है, own account. Circle कर दो वहाँ पे. Point number कौन सा है? 9th. So point number 9 में देखो दिया है on own account. हाँ खर्चा ही डालेगा ना, क्योंकि खुद का नहीं है उसका. ऑन माई ओन अकाउंट है मतलब आई एम कैपिटलाइजिंग. मेरे खुद के लिए ऑफिस बिल्डिंग है तो हम कैपिटलाइज करेंगे. मैं दूसरे के लिए बना रही हूँ तो वो मेरा खर्च है, मैं उसे फीस लूंगी. यस तो सभी एंगल्स से ये एलिजिबल होता है. एक तो आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे, खुद का नहीं है, इट्स फर्दर सप्लाई, राइट. एम एन कंस्ट्रक्शन ने सीमेंट वगैरह वगैरह कुछ इनवर्ट सप्लाई खरीदा, इनपुट्स क्यों खरीदे? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. खुद के लिए है क्या? नहीं, फॉर समबडी एल्स. So my further supply is also sale of immovable property. So is that allowable? You know, yes, I'm doing it not for my own account, I'm doing it for somebody else. So this ITC is available. Yes, so write down there, ITC is available. ITC is available to MN and constructions. MN and constructions as the inputs. As the inputs are not used, as the inputs are not used, as the inputs are not used for construction of immovable property on his own, for his own, as the inputs are not used for construction of immovable property for his own property, as the inputs are used for construction of immovable property. आगे क्या बोला? For his own purpose. तो वो खुद के लिए नहीं यूज कर रहा है, not for his own purpose. It is for further supply. So further supply हो रहा है तो क्रेडिट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा. further supply हो रहा है तो क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. Yes. आगे. A company buys cement, tiles, etc., avails the services of an architect for renovation of its office building. The company has booked such expenditure in its profit and loss account. So is this available? Yes. P&L में गया तो it is available. Yes. हाँ फिर भी allowed है ना खुद के ऑफिस के लिए. but is it resulting in immovable property? Immovable property मेरा खुद का, I have to capitalize it. It is resulting in repairs and maintenance. Yes, but when I use cement and something like that to construct a building, it is resulting in immovable property. That मेरी खुद की है तो वो नहीं अला होगा. तो 3 अलग अलग पॉइंट्स है लेकिन सबका कहना वही है. अगर आप रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कर रहे हो और वो P&L में जा रहा है तो अलाउ होगा. अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और खुद के लिए है, भले ही वो ऑफिस के पर्पज के लिए होगा, तो वो अलाउ नहीं होगा. बराबर. यस, सो हियर कंपनी हैज बुक सच एक्सपेंडिचर, ITC इज अवेलेबल. इसलिए मैंने बोला ना हर टाइप का एग्जाम्पल कंसिडर किया गया है. आपको एग्जाम्पल लेके ही पढ़ना पड़ेगा. एक दिन बैठ के ब्लॉक क्रेडिट पढ़ना, एक दिन पहली वाली कंसेप्ट. तो ITC वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. या ITC, next one, ITC on goods and services used by an automobile company for construction of a foundation, वापस वही आ गया, on which machinery to be used in production process is mounted permanently. ITC is eligible. Why? Because जो immovable property है वो क्या है? Plant and machinery है. तो is it eligible? Yes, it is eligible. आ गई. Yes, what happened? क्या बोलता है? (26) का एक्सप्लेनेशन दूँ. हाँ, 26 में क्या हो रहा है? यू आर बाइंग टाइल्स वगैरह वगैरह, यू आर बाइंग ऑल दिस, बट फॉर व्हाट पर्पज? फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस. आर यू कैपिटलाइजिंग इट? नो. इफ आई डोंट कैपिटलाइज इट, इट इज एलिजिबल. सी देखो यहाँ पे वेरी क्लियरली इट इज गिवन. See here, works contract services for construction of an immovable property including repair, maintenance and renovation to the extent of capitalization is a block credit. I am not capitalizing it, I am debiting it to P&L. So ये point देखो very clearly, to the extent of capitalization is a block credit, but I am not capitalizing. मैं तो P&L को debit कर रही हूँ. तो P&L को debit कर रहे हैं मतलब this is a eligible credit. बरोबर?
हाँ कि नहीं? हाँ, आगे आगे किधर है? 28। कहीं पे भी डाउट है तो स्टूडेंट्स प्लीज आस्क, नो नीड टू हेजिटेट, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। 28. Inward supply of food packets to airlines. The packets are used for in-flight catering, which is considered as a part of composite supply of air travel services. Now, generally, food and beverages is a block credit. However, when food and beverages is used for providing an outward supply of same category, it is allowed. Also, when food and beverages is used for providing outward supply, which is a part of composite supply or a mixed supply, it is allowed. Now, airlines का main काम catering नहीं है, but is it a part of their services? Yes. So, this is a eligible credit. Perfect. ITC available. A model has taken membership of health and fitness center. Let it be for her business, but this is always going to be a block credit. Block credit. Block credit का section क्या है बताना? 17(5). 17 subsection 5 of the CGST Act. Block credit. Okay, 2017, right. Inward supply of rent-a-cab service to a supplier who is in the same line of business providing rent-a-cab services. Now, generally rent-a-cab is a block credit. Generally, rent-a-cab is a block credit. But if you are using this rent-a-cab services for providing outward supply of same category, it is eligible. बरोबर? Eligible. ITC अवेलेबल, एलिजिबल, जो भी वर्डिंग आप डालोगे चलता है। 31. इनवर्ड सप्लाई ऑफ रेंट कैब सर्विस टू अ टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर को भी कैब सर्विस होता है। टूर ऑपरेटर जो होता है वो आपको गाड़ी भी प्रोवाइड करता है कभी कभी। ही विल टेल यू कि ठीक है हम आपका पूरा टूर अरेंज कर देंगे, आपको एयरपोर्ट से कैब आएगा, पिकअप करेगा, होटल छोड़ेगा, फिर होटल से वापस देयर विल बी अ कैब। सो टूर ऑपरेटर का मेन सर्विस है टूर ऑर्गेनाइज करना, बट एक कॉम्पोजिट सप्लाई है जिसमें थोड़ा सा पार्ट होता है कैब भी प्रोवाइड करना. सो दिस इज एन एलिजिबल, yes, this is an eligible ITC. Normally renting of cab is a block credit, but if renting of cab is used for providing an outward supply of same category or indirectly it is a part of, ऐसा composite supply बड़ा है उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो क्या वो क्रेडिट अवेलेबल होगा? बिल्कुल अवेलेबल होगा. ठीक है. सो ITC अवेलेबल. अच्छा, इसमें से कुछ आंसर्स मॉड्यूल के हैं, क्वेश्चंस थे, मैंने कवर कर दिए, प्लस मैंने कुछ एडिशनल ड्राफ्ट करके डाले हुए हैं. तो एज फार एज योर GST इज कंसर्न, यू डोंट हैव टू लुक एट अ सिंगल चैप्टर फ्रॉम द मॉड्यूल. आपको मॉड्यूल रेफर नहीं करना है. तो बिल्कुल क्यों, पूरा का पूरा मैंने नोट्स प्लस सारे प्रॉब्लम्स कवर कर दिए हैं. MCQs भी इसके GST के आपके साथ हो ही गए अभी. DT MCQs, I'll give you a book and the answers will be there, you can do it, but I would, if I was a student, I wouldn't spend too much time on MCQs. If I was a student, choice is yours. If I am a student and I am appearing for an exam which has an MCQ, I would solve limited MCQs. No need of buying books where 1000 MCQs are there. करोगे क्या यार, 1000 MCQ solve करके क्या, concept तो वही है ना, रामबाण करके जाओ ना पूरा, वो पूरा आ रहा है पेज 1 से लेके लास्ट पेज तक, तब मुझे बोलना कि अब हम क्या सॉल्व करें और अब हम क्या करें. एक भी कंसेप्ट मैंने वहां से आपको पूछा और आपको नहीं आया तो ठीक नहीं है. सी कंसेप्ट पे बेस्ड MCQ होने वाला है. MCQ का कोई अलग सिलेबस है क्या? हाँ, प्रैक्टिस होना चाहिए, इसलिए आई एम गोइंग टू गिव यू दैट बुक, और वो बेसिस पे आंसर्स होंगे, आप उसको ये कर सकते हो. इनफैक्ट कल या परसों से ही मेरे ऐप पे, आज नहीं संडे है ना, ट्यूसडे से ऑन माय ऐप, आई हैव द ऐप, तो GST के हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन. और ऐप पे क्या होता है, माय ऐप इज PKD ऐप ही है, तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इट्स अ फ्री ऐप. उस पर क्या होता है, आप जैसे ही आंसर टिक करोगे और सबमिट बटन क्लिक करोगे
तुरंत आपको मार्क्स आ जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है आंसर्स का। तो लास्ट बैच MCQs वर्क डन दैट वे ऑन GST, कंपेयर टू दैट ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो एटलीस्ट GST आई हैव डिसाइडेड वील अपलोड, इनफैक्ट द वर्क इज इन प्रोग्रेस। ट्यूसडे को पहला चैप्टर अपलोड हो जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आप ऑन कर दोगे तो आपको जैसे जैसे टेस्ट अपलोड होती है तो आपको पता चल जाएगा। तो MCQs GST के तो आप करते रहना। DT आई ऑफ कोर्स गिव यू अ बुक फॉर दैट, और एक बुक मैं आपको दूंगी सारांश करके जो है, बट राइट नाउ आई गॉट अ लिटिल बिजी विथ GST नोट्स। क्या होता है, तुम्हारा जो बुक्स होते हैं, लास्ट बैच के बुक्स आर रेडी, बट योर्स इज AY चेंजेस ना, so syllabus change हो गया, so I have to update that, then GST changes at the same time, so now I got busy with GST notes. Now once GST is done, तुरंत आपको लास्ट टाइम के मेरे चार्ट सारांश एंड एवरीथिंग इज रेडी, आई जस्ट अपडेट इट एज पर AY 2021 एंड यू विल गेट इट। ओके, यस। मैं क्या दूंगी और क्या नहीं दूंगी, उससे ज़्यादा हम क्या पढ़ सकते, इस पे स्टूडेंट्स का फोकस ज़्यादा होना चाहिए। यू शुड नेवर फोकस ऑन व्हाट आई एम गेटिंग। ये इतनी बुक्स की थप्पी लेके क्या करोगे यार, क्या करोगे क्या, जो है उसको अच्छे से पढ़ो। तुम्हारा हो गया कि पढ़ के, पहले वो पढ़ो, बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू चेंज दिस अप्रोच एंड एटीट्यूड, फिर पढ़ाई अच्छे से होती है। ये फ्रेंड ने बोल दिया यहाँ पे ना बहुत एक अच्छा चार्ट मिल रहा है, यहाँ पे लर्निंग हो जाएगा, या मैंने सारांश आपको समरी बुक दे दिया। See, we give it to you, but finally, how much? If you feel no, I'm going to go by my concept, just read that much and go. I would have done that being a student. I wouldn't have spent too much of time on MCQs. I would say वो करने से अच्छा मेरी concept और एक बार revise हो जाएगी। बट MCQ सॉल्व करके पक्का जाना है, क्योंकि अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है, तो आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग अ कंप्लीटली नो टू MCQ, बट येस यू मस्ट डू इट, बट आई फील यू स्टूडेंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। उससे अच्छा है कि एक आधा चैप्टर और एक बार रिवाइज हो जाएगा जो डिफिकल्ट लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको, करना है। सो आई विल गिव यू लिमिटेड MCQs, लाइक माई लास्ट attempt I had given like 2000 MCQs, then I realized no, it's too much of time consuming, so I had given total मतलब मैंने ऐसे किया था 2019 MCQs for 2019 attempt, तो उसमें GST plus, so I thought every time I'll add one question, so it will become 2020 के लिए I'll have 2020 questions, but see, it's not about how many questions I can give you, lots of books are available outside, I can just draft it and give it and मेरा काम खत्म। I don't want to do that. I'm thinking from your viewpoint. तुम कितना मटेरियल इकट्ठा करोगे यार, मटेरियल इकट्ठा करने से अगर CA बन जाते तो आज तो हर कोई CA बन जाता। आप अगर हाँ मेरे पास 20 बुक्स है तो तू CA बन गया, नहीं मेरे पास 25 है तो तू पक्का बन गया, ऐसा नहीं होता है। Here, it has to all go in here. Do you understand that? Yes. So change that attitude and approach. ठीक है? For all subjects. कोई फ्रेंड बोलता है कि मेरे पास ये बुक अवेलेबल आ गया है, most likely questions or important questions, forget all that yaar, have confidence in your concept and your understanding and go to solve the paper. Okay, right, now 32, pay attention. Rent a cab, inward supply of rent cab service to a manufacturer. Generally rent a cab is a blocked credit. It is allowed to whom? Only if it is same outward supply. बरोबर, यस। सो ये तो मैन्युफैक्चरर है, तो उसके लिए तो दिस इज अ ब्लॉक क्रेडिट। इनवर्ड सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज टू कोचिंग एकेडमी। मुझे नहीं पता, चेक कर लो, KYN करो। ये नीचे वाले मैंने कुछ ड्राफ्ट किए हुए हैं। आयु ब्लॉक क्रेडिट है, मैंने तो ले लिया था क्रेडिट, गलत किया। अच्छा ब्लॉक क्रेडिट है तो ब्लॉक क्रेडिट के 14 नंबर है ना, 14, सुनो ना 14 है ना, तो बता दो कौन सा वाला है। सुन, तूने कौन सा नंबर बोला, पढ़ जरा। ये बिल्कुल अलावेबल है और मैंने सही किया है और बिल्कुल गलत नहीं है, और आंसर आपके सबके गलत है, और आंसर है कि इट इज एन अलाउड क्रेडिट। ना फर्स्ट पे अटेंशन, KYN करके तो सही आंसर दो यार, KYN करके तो सही आंसर दो ना। पे नहीं, थर्ड में भी नहीं आता है। थर्ड पॉइंट में इट इज जनरल इंश्योरेंस बट ऑफ दोज कार्स। नाउ
Now of course here you don't have to assume this is for those car या उसके लिए है. So let's say inward supply of general insurance of stock. ओए जनरल इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक और फर्नीचर का बोलो. तो अगर मैंने जनरल इंश्योरेंस किया, स्टूडेंट्स ये ब्लॉक क्रेडिट नहीं है यार. लाइफ इंश्योरेंस इज अ ब्लॉक क्रेडिट, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ ब्लॉक क्रेडिट. आप बोलोगे नहीं नहीं मैम थर्ड पॉइंट पे दिख रहा है ना कुछ जनरल इंश्योरेंस, आगे का पढ़ना. रिपेयर मेंटेनेंस, जनरल इंश्योरेंस किसका लेने का? ऐसी गाड़ियां, वेसल्स या एयरक्राफ्ट जो ब्लॉक क्रेडिट में है. कल का ड्राइंग भूल गए क्या? कार ड्रॉ किया तो उसका इंश्योरेंस है तो वो ब्लॉक क्रेडिट है. तो जनरल इंश्योरेंस अगर मैंने बेंचेस का इंश्योरेंस करवाया, यहाँ पे मैंने फर्नीचर का इंश्योरेंस करवाया और उसके लिए मैंने प्रीमियम पे किया और उसका जो जीएसटी है इट इज एन एलिजिबल क्रेडिट. समझा? 14 तो पॉइंट है यार. ढूंढ के बताओ कहाँ पे तुम बोल रहे हो जनरल इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट है, तो क्यों बोल रहे हो? कहीं कवर्ड नहीं है यार. तीसरे पॉइंट में जनरल इंश्योरेंस ही वर्ड आएगा, बट वो किसका जनरल इंश्योरेंस है? ओनली सच कार्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट जो पॉइंट नंबर 1 एंड 2 के हिसाब से ब्लॉक क्रेडिट है. हाँ डन है क्या एवरीबडी? हाँ एलिजिबल क्रेडिट क्या हुआ? ब्लॉक्ड होगा तो उधर मेंशन होगा ना, तो मेंशन ही नहीं है इसलिए तो ब्लॉक नहीं है. अयो अरे 1 से 14 वाले ब्लॉक क्रेडिट है, नहीं मिला ना मतलब ब्लॉक नहीं है ना. हाँ नॉट अ ब्लॉक क्रेडिट. Inward supplies of construction service. एक साथ कर दो, पहले एक ही साथ करेंगे. 34 से 36 कर दो तो मैं एक ही टाइम डिस्कस करूंगी. चलो 34 to 36 करो जल्दी. चलो जल्दी करो. आज नहीं चॉकलेट. क्या बोलता है? पूछा नहीं तुमको खाना कैसा था? अच्छा ही था ना. क्यों आज खाना नहीं मिला? अयो सब खत्म हो गया था. रोज पाव भाजी नहीं, रोज पराठे खाते हैं. अच्छा फुल्का सब्जी नहीं खाते? मैं मेस चालू करूं? हो जाएगा. नहीं नहीं, इसलिए बच्चों ने घर छोड़ के बाहर जाके कुछ भी हो, पढ़ाई हो या नहीं, 6-8 महीने जान पेरेंट्स ने बाहर भेजना ही चाहिए बच्चों को. दे लर्न द वैल्यू ऑफ हाउस, दे लर्न द वैल्यू ऑफ पेरेंट्स, दे गेट इम्पोर्टेंस ऑफ मनी. यस ठीक है, अच्छी बात है. लाइफ के ये लेसन्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं. दे विल हेल्प रिमेन विथ यू एंड टेक यू अ लॉन्ग वे. यस बिल्कुल. इधर ही अच्छा है. चलो क्वेश्चन नंबर 34 किया आप लोगों ने. कभी भी आपके पेरेंट्स से झगड़ा नहीं करना, उल्टे सुल्टे जवाब नहीं देना, उनकी रिस्पेक्ट बहुत करनी चाहिए. समझा? और दोस्तों से आई टेल यू वन थिंग, लाइफ बहुत छोटी एंड एंजॉय लाइफ, डोंट कॉम्प्लिकेट इट. आई टेल यू वन थिंग, आपको क्या लगता है पता है? बस ये मेरा एग्जाम हो जाए फिर मैं कुछ नहीं चाहिए, आई शुड क्लियर इंटर, फिर और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए. फिर आएगा आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप में बॉस कैसा मिलेगा, प्रिंसिपल कैसे मिलेंगे पता नहीं है. हाँ तो वहाँ पे तुम बोलोगे अरे यार ये क्या है. फिर फाइनल की एग्जाम आती है, फिर तुम बोलते हो भगवान बस सीए कर दे और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए. फिर तुम सीए बनोगे, देन यू विल हैव न्यू चैलेंजेस, then you will have new challenges, right?
नो 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 नो, नॉट दैट सून, नॉट एट ऑल। एक हाथ 2 डिग्रीज और करनी है आपको, और आप कोशिश करो उसके साथ, 3 साल खूब पढ़ाई करो, बहुत अच्छे जाके कहीं पे। अरे सर साइड बाय साइड करने का, लाइफ एंजॉय करने के लिए एटीट्यूड है तुम्हारा, ऐसे थोड़ी कि सीरियस लेके बैठोगे तो फिर कहाँ एंजॉय करोगे। लाइफ एंजॉयमेंट कैन बी डन इन ऑल स्टेजेस, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट अभी बस इतना हो जाए और मेरा हो गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके। कम ऑन, लेट्स गो अहेड। हाँ, अच्छी बात है। An inward supply of construction service to PKD Education, a coaching academy. An additional floor has been built by PKD Education. तो PKD Education ने अगर additional floor construct किया, is it resulting in immovable property? Yes. It could be for own work, own business, but still it is a blocked credit. हाँ, लेकिन अगर PKD ने ये जो काम किया और उसको repair maintenance में दिखाया और capitalize नहीं किया, then I can claim that as a eligible ITC. Otherwise, this is a blocked credit. Very good. आगे, Mr. A owns a proprietary concern, purchases stationery in bulk, of which 60% is used for personal. तो 60% proportionate ना, तो 60% of the stationery is a blocked credit. Yes, 60% of stationery. %60 of stationery will be block credit. Why? Personal use. हाँ, दिया है आपके पॉइंट्स में है, 10, 11 नंबर पे कहीं होगा, will be a block credit है, 12, ठीक है। ABC परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। आपको पता है आईटीसी का कैसे होता है, आपने आज अगर खरीदा ना तो जिस दिन परचेज किया उसी महीने आप आईटीसी लेते हो। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, सुनो, आपको पता नहीं होता है। सी, मैंने आज गुड्स खरीदे, आई कुड बी अ मैन्युफैक्चरर, वो इनपुट्स अभी भी मेरे गोडाउन में ही पड़े, फिर भी मैंने इस महीने में उसका आईटीसी ले लिया। इट्स वेरी इजी आईटीसी, सेल उस महीने का सेल लेने का, उसका इनपुट सेल लेने का, उसका जीएसटी आउटपुट टैक्स निकालने का, इनपुट्स लेने का, उसका इनपुट टैक्स निकालने का और सेट ऑफ करने का। देयर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन कि ये गुड्स खरीदे, ये बेचेंगे तभी आईटीसी मिलेगा। अरे डीलर बोलेगा, बिजनेसमैन बोलेगा ये बिजनेस छोड़ के ये काम करूँ क्या, 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता है। You purchase, you can claim ITC. Simple as that. It may be lying now, you may be using it in your manufacturing process after 6 months, doesn't matter. You may sell that particular product after 8 months, doesn't matter. It is still in your stock, doesn't matter. तुमने खरीदा, टैक्स पे कर दिया, बिल है, 180 डेज में पेमेंट कर दिया, गुड्स रिसीव हो गए, तुम्हारी कंडीशंस उतनी थी, मैंने कुछ कंडीशन बोली कि जो गुड्स खरीदा वही बेचने पे ही आईटीसी मिलेगा, तो तुम क्यों खुद की कंडीशंस बना रहे हो। सिंपल तो कंडीशंस है, बिल होना चाहिए, 180 डेज में पेमेंट करना चाहिए, गुड्स रिसीव होने चाहिए, रेसिपिएंट ने रिटर्न भरना चाहिए, सप्लायर ने टैक्स पे करना चाहिए, बस इतना कर दो, आईटीसी मिल गया आपको, राइट। सो अब देखो, एबीसी ने परचेज किए 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, 70 यूनिट्स, आउट ऑफ दैट 70 यूनिट्स वाज स्टोलन फ्रॉम द फैक्ट्री। तो 70 स्टोलन हो गए, तो वो 70 जब खरीदा था तुमने उस पर सेट ऑफ ले लिया होगा, अब 70 स्टोलन हो गए तुम्हारे, तुम बेचोगे नहीं उसको, तुम्हें आईटीसी आउटपुट टैक्स नहीं है तो उसका इनपुट टैक्स भी नहीं मिलेगा। सो ये 70 अगर तुमने पहले इनपुट टैक्स लिया होगा तो अभी ये ब्लॉक क्रेडिट बन गया, तो आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, है ना। यस, सो राइट डाउन, ITC not allowed for 70 units. ITC not allowed for 70 units. बरोबर, 30 यूनिट्स पे मिलेगा, 70 यूनिट्स पे आईटीसी नहीं मिलेगा। आपने पहले ले लिया होगा तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा, आपने पहले ले लिया होगा तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सही है। गिफ्ट ना, गिफ्ट के लिए भी देखो ना, फ्री में दिया, अगर ये गिफ्ट फ्री में आपने दिया है, इसको सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाता। इफ दिस गिफ्ट इज नॉट, गिफ्टिंग इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, दैट मीन्स देयर इज नो आउटपुट टैक्स। इफ देयर इज नो आउटपुट टैक्स, देयर शुड बी नो इनपुट टैक्स। हाँ, समटाइम्स गिफ्टिंग कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई, समटाइम्स गिफ्टिंग कैन बी ट्रीटेड एज सप्लाई। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट,
Schedule 1, bar API, bar BA is for business asset. So disposal of business asset. आपके पास शर्ट्स की आपकी दुकान है, शर्ट की, कोई दोस्त आता है, आप उसको फर्स्ट टाइम आया, आप उसको गिफ्ट करते हो. Dear students, this gifting is treated as supply because it is getting covered under Schedule 1. गवर्नमेंट इसको सप्लाई ट्रीट करके तुमसे टैक्स लेने वाली है, तो तुम आईटीसी इसका ले सकते हो. समझा? तो गिफ्टिंग में भी इफ द गिफ्ट्स आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, ओके, इट्स नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, देन जैसे आपने एम्प्लॉय को गिफ्ट कर दिए शर्ट्स दिवाली पे, आपकी शर्ट्स की दुकान है, आपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट कर दिए, एम्प्लॉयज को 50,000 तक गिफ्टिंग इज एग्जम्प्ट, अलाउड होता है, टैक्स नहीं लगता, सप्लाई नहीं ट्रीट किया जाता. तो इज इट ट्रीटेड एज सप्लाई? नो. तो अगर आपने 20 शर्ट्स गिफ्ट किए एम्प्लॉयज को, तो ये 20 शर्ट्स का जो इनपुट टैक्स है, इसका क्रेडिट तुमको नहीं मिलेगा, इसका क्रेडिट तुमको नहीं मिले. आई फील मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ये बता रही हूँ, कंसेप्ट इतने डिटेल में अभी इंटर लेवल पे है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया और मुझे ऐसा लग रहा है आपको समझ में भी आ गया है. सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? Yes. Inter level, we have to come down to your level. Your syllabus is like this. Final, you have to reach that level, the teacher's level, or you have to reach that final जो भी पूरा आपको समझना in depth होना करना पड़ता है that time. ठीक है? अब गिफ्ट के लिए लिखते हैं, चलो. If gifting is treated as supply, if gifting is treated as gifting is treated as supply, if gifting is treated as supply, then if gifting is treated as supply, then what will happen? Then ITC will be allowable. Then ITC allowable. However, if gifting is not treated as supply, if gifting is not treated as supply, if gifting is not treated as supply, then ITC not allowed. Then ITC not allowed. It will be block credit. Then ITC not allowed. It will be block credit. समझ में आ रहा है ना? रीजन अच्छे से, मैचिंग प्रिंसिपल है. 38. Mr. A is a GST registered graphic designer. 5 computers are purchased. 4 put to business use and 1 put to personal use of his son. So 4 will be eligible for ITC and 1 will be blocked credit. Yes, write down. 4 computers will be eligible for ITC. 4 computers will be eligible for ITC. Four computers will be eligible for ITC and 1 will be blocked credit and 1 will be blocked credit. And why will that 1 be a block credit? Yes, because it is used for personal purpose. Perfect. Everybody okay with that? आगे 38 हो गया. 39. Mr. A manufactures chocolates and supplies through ECO. He is GST registered as required by section 24 of the CGST Act. 24 मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, अगले एक चैप्टर में आ जाएगा. बेसिकली वो रजिस्टर्ड है, GST के अंडर उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, एंड ही इज मेकिंग चॉकलेट्स एट होम एंड ही इज सेलिंग इट थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर. कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे चॉकलेट्स या केक्स या बेकरीज का प्लेटफॉर्म है, वहाँ के थ्रू ये सेल कर रहा है. Mr. A is conducting business from home. Expenses incurred on telephone, interest, maintenance, repairs. All these are used for both business and non-business purpose या private purpose. तो आपको क्या करना पड़ेगा? Proportionate ITC will be allowed. So you'll have to go and ask him how much hours you are roughly doing business. कितना है? Can I say 30, 70, 40, 60? ये उसके साथ बैठ के आपको एक judgment करके decide करना पड़ेगा. राइट. सो बट क्या आपको नहीं पूछा जाएगा कितना परसेंटेज, बट आपका आंसर क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनेट आईटीसी विल बी एलिजिबल एंड आईटीसी दैट इज फॉर द पर्सनल यूज इट विल बी ब्लॉक क्रेडिट. ओके, सो राइट डाउन. प्रोपोर्शनेट आईटीसी विल बी अलाउड.
proportionate ITC will be allowed. क्या होगा? Proportionate ITC will be allowed. Is that clear? Proportionate ITC will be allowed. आगे हो गया 40. Mr. A, a sole proprietor providing coaching services, GST registered. He has purchased a car 80,000 के लिए plus GST. Car is used for going to his coaching center and then coming back. But a four-wheeler, anything up to a 13-seater is a block credit. तो ऐसी कार का इंश्योरेंस करवाया, उसका GST भी ब्लॉक क्रेडिट. ऐसे कार का रिपेयर मेंटेनेंस करवाया, उसका GST भी ब्लॉक क्रेडिट. बरोबर? हाँ, ब्लॉक क्रेडिट. ब्लॉक्ड क्रेडिट. कुछ सर्कुलर्स है, अभी नहीं सिखाऊंगी, थोड़ी देर से सिखाऊंगी. No break. We started at 2:10, so not now. Okay. Very important concept, concept 4, how ITC is utilized. Pay attention. अब सुनो, ध्यान दो, एकदम फोकस करना. एक बार क्लिक हो गया, भूलोगे नहीं, तुरंत आपको आंसर्स भी सॉल्व करने हैं. इस पे हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. इसी पे प्रॉब्लम्स आते हैं. ब्लॉक क्रेडिट वाला क्वेश्चन आएगा, ये टाइप के तो प्रॉब्लम सॉल्व करने को एक प्रॉब्लम ही आएगा आईटीसी कंप्यूट करने के लिए. कंपलसरी वन क्वेश्चन इज देयर, कंपलसरी एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आता ही है. तो ये आने ही वाला है आपको इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में. नाउ अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, पहले तो मुझे ये बताओ, मैंने आपको बोला कि ये जो है, ऐसे ही मैंने बोल दिया कि कुछ चीज़ लेके चलो कि ये जो है ये आईजीएसटी का टैक्स है. ये मैंने बोल दिया ये क्या है मेरे पास, आईजीएसटी का टैक्स. तुमने क्या सवाल पूछना चाहिए, ये इनपुट वाला आईजीएसटी है या आउटपुट वाला आईजीएसटी है. जब मैं आईजीएसटी टैक्स है मेरे पास, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि मैम ये सेल वाला आईजीएसटी है जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया और आपको गवर्नमेंट को पे करना है, ये आपकी लायबिलिटी है, या मैम ये आईजीएसटी आपके इनवर्ड वाला है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो और इसका आपको सेट ऑफ मिलेगा. एक आईजीएसटी मेरी लायबिलिटी है और एक आईजीएसटी मेरा सेट ऑफ है. सो व्हेनेवर आई टेल यू नो, ये देखो ये आईजीएसटी है या ये सीजीएसटी है, ये एसजीएसटी, आपका पहला सवाल होना चाहिए कि आईजीएसटी से नहीं चलता. इसलिए अगर आप आर्टिकलशिप चालू करोगे, आप किसी अकाउंटेंट के पास या किसी क्लाइंट के पास ऑडिटिंग करने जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे आईजीएसटी का एक अकाउंट नहीं खोलना. कंफ्यूजन हो जाता है यार, आईजीएसटी इनवर्ड वाला है कि आउटवर्ड वाला है. सो यू मस्ट ओपन आउटपुट टैक्सेस का अकाउंट सेपरेटली एंड इनपुट टैक्सेस का अकाउंट सेपरेटली, बिकॉज एक ही टैक्स है, सी बोलो एस बोलो, जो भी है इनवर्ड के लिए और आउटवर्ड के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अलग है. सेल्स पे जो टैक्स हमने कलेक्ट किया वो मेरी लायबिलिटी है, और परचेसेस पे जो मैंने पे किया वो मेरा असेट है, क्योंकि मुझे उसका सेट ऑफ मिलता है, क्योंकि मुझे उसका क्या मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा. बरोबर समझा? अब सुनेंगे और समझ के लेंगे. अब मैं बात कर रही हूँ आईटीसी यूटिलाइज कैसे करना है. व्हेन आई से आईटीसी, ध्यान 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 सब लोग इधर, व्हेन आई से आईटीसी मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, इनपुट टैक्स. किस चीज की बात हो रही है, इनपुट टैक्स. व्हेन आई से इनपुट टैक्स क्रेडिट, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ अ इनपुट टैक्स. ठीक है, तो पांडु बहुत खुश है, वो बोलता है मेरे पास बहुत आईटीसी है. क्या क्या है, टोटल बोलता है. मैं बोलती हूँ टोटल मत बता यार, टोटल मत बता, आईटीसी का ब्रेकअप बता मुझे. हाउ मच आईटीसी तेरे पास इनपुट टैक्सेस, सी का कितना पेड है, एस का कितना पेड है और आई का कितना पेड है, क्योंकि सेट ऑफ के रूल्स अलग अलग है इसके लिए. तो कोई बोलता है मेरे पास ना बहुत सारा इनपुट टैक्स है. अरे बहुत सारा मत बताओ यार, क्या करना चाहिए उस बहुत सारे को, आई का कितना, सी का कितना, एस का कितना. ठीक है, उसमें से पहले सोचेंगे आईजीएसटी वाला इनपुट टैक्स. अयो क्या बोला मैंने, आईजीएसटी वाला इनपुट टैक्स. म्हणजे काय, म्हणजे काय, मेरा परचेज हुआ आउटसाइड द स्टेट. कहां से हुआ मेरा परचेज, आउटसाइड द स्टेट. आउटसाइड द स्टेट आई परचेज, व्हेन आई परचेज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, व्हाट डिड आई पे, आईजीएसटी. आई एम वेरी हैप्पी, सेट ऑफ मिलेगा, सेट ऑफ मिलेगा. हाँ, लेकिन किसके अगेंस्ट मिलेगा, वो आईजीएसटी का जो मेरे पास सेट ऑफ है, आई कैन यूज इट टू पे माई लायबिलिटी ऑफ जीएसटी.
IGST का जो मेरे पास सेट ऑफ है ना, आई कैन यूज इट टू पे GST की लाइबिलिटी। कौन सी? नहीं, GST की लाइबिलिटी बहुत है मेरे पास 10 लाख पे करना है। अरे ऐसा मत बता यार, उस 10 लाख में से IGST कितना पे करना है, CGST कितना पे करना है और SGST कितना पे करना है। हाँ, मतलब इन सारे टैक्सेस का अकाउंटिंग I का अलग, C का अलग, S का अलग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और SGST बोला तो उसके दो साइड्स है, एक लायबिलिटी वाला है, एक असेट वाला है, एक आउटपुट वाला है, एक इनपुट वाला है। अब ध्यान देना, IGST का सेट ऑफ 1 फरवरी 2019 से ये रूल्स चेंज हुए। जब GST इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017, उसके बाद तुरंत सेट ऑफ के रूल्स भी चेंज कर दिए गए और ये चेंज हुआ 1 फरवरी 2019 में सेट ऑफ के रूल्स चेंज कर दिए गए। What is it? Now, you know why I'm trying to tell you the frequency. Just think ना कि नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया, कितने फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली तुम चेंजेस करते हो। सेट ऑफ जैसी चीज जो पूरा बेस है आपके GST का, जुलाई 17 में आने के बाद तुरंत 1 फरवरी 2019 को आपने उसमें चेंजेस भी ला दिए। सो ठीक है, बट नाउ हाउ इज दिस ITC टू बी यूटिलाइज्ड? चेंजेस लाए, ऑफकोर्स चेंज अच्छा था, चेंज की ज़रूरत थी, मतलब आपके जो पहला सेट ऑफ का रूल था उसमें कुछ डिफेक्ट था, इसलिए ये करना पड़ा। हाँ, अब सुनो, IGST का सेट ऑफ क्लास में लर्न नहीं हुआ ना, तो देखो मैं बोल रही हूँ, हाँ मैं रूल्स पूछूंगी इधर, हर एक को आके 3-3 बार वो रूल्स बता के जाने का इधर आज, समझा क्या? हाँ, अब सुनो क्या रूल क्या है। पहला, IGST का इनपुट टैक्स, ओके, IGST का इनपुट टैक्स, IGST का मेरे पास इनपुट टैक्स है, मैं किसके लिए यूज कर सकती हूँ इसको? आई कैन यूज इट टू पे IGST की लायबिलिटी, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। पहले फर्स्ट किधर यूज करने का? IGST की लायबिलिटी, फिर नो, मैंने दोनों को नंबर 2 दिया है। यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर टू यूज इट बिटवीन S और बिटवीन C। समटाइम्स मेरा CGST की लायबिलिटी कम हो सकती है, कभी S की ज्यादा हो सकती है, देयर कैन बी अ डिफरेंस, सो आई हैव टू बी गिवन अ चॉइस। हाँ, I को पहले I के लिए यूज करो, सही है, I को पहले I के लिए यूज करो, सही है। I इनपुट IGST का टैक्स IGST की लायबिलिटी के लिए यूज होगा, उसके बाद CGST और SGST, योर चॉइस। आधा आधा करो, 80-20 करो। Then IGST का इनपुट टैक्स फर्स्ट शुड बी यूज टू पे IGST की लायबिलिटी। IGST का टैक्स इनपुट टैक्स कैन आफ्टरवर्ड्स बी यूज टू पे आइदर CGST, SGST। S की जगह पे जहां पे भी मैं S बोलूंगी, इट इज ऑब्वियसली इट मीन्स इवन UTGST। I can use this in any order and any proportion. I can use this in any order and any proportion. Why? How? You will understand when we do a question. ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास कौन सा इनपुट टैक्स है? IGST वाला। पहले देखो कौन सा इनपुट टैक्स है? IGST वाला। किसके लिए यूज करने का? किसके लिए यूज करने का? पहले IGST, इधर नहीं है इन एनी ऑर्डर, वो नीचे है। देन आई शुड यूज इट फॉर CGST, SGST और UTGST in any order और any proportion। कर दिया? in any order or any proportion. So I can use that input tax for C, for S, for UTGST. आपका चॉइस, आपको पहले U के लिए यूज करना है, U के लिए पूरा यूज कर दो, any order and any proportion. You can do it half half, 80-60, 20-60। पता है, इसलिए आपके सेट ऑफ के सबके आंसर्स अलग आ सकते हैं। मल्टीपल आंसर्स कैन बी देयर, मल्टीपल। ओके, लिसन। अब आएगा दूसरा टैक्स। देखो, आई हैव असेट्स है मेरे पास, यहाँ पे बहुत सारे असेट्स है। कौन से मेरे पास टैक्सेस है? पहले इनपुट टैक्स, बकेट में से निकाला बाहर, क्या निकाला? इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स को बोला जाओ तुम काम करके आ जाओ। क्या काम करने का? सेट ऑफ करने का है। किसके लिए? पहले I की लायबिलिटी, फिर C और S और U इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन। एक बार बकेट से I निकला, उसको वापस रखना अलाउड नहीं है। पहले I को खत्म करो, फिर दूसरे टैक्स को बाहर निकालो। क्या रूल है? पहले I को खत्म करो, फिर दूसरे टैक्स को निकालो। I को वापस अंदर डाल ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी और भी लायबिलिटी है, यू आर नॉट अलाउड टू पुट IGST अंदर।
I can move to CGST का input tax only when IGST का input tax is over. Compulsory to finish IGST का tax first. तो अगर मैंने IGST टैक्स को बाहर निकाला, पहले किसके लिए यूज करेंगे? I की लायबिलिटी, फिर C और S और U की लायबिलिटी इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन. बरोबर. सुनो, मैंने I का सेट ऑफ कर दिया, फिर भी मेरे पास IGST बचा है, डाल दूं वापस? अलाउड है? अलाउड है. क्या करना पड़ता है? इसको खत्म करो. इसको खत्म कर दिया मैंने, और फिर देखना क्या लायबिलिटी बची. अब मेरे पास फिर भी CGST की लायबिलिटी बची हुई है. अब बकेट के अंदर मेरे पास यहाँ पे असेट साइड में कौन सा टैक्स है? CGST. उसको बाहर निकालेंगे, उसको बोलेंगे जाओ अभी तुम्हारी बारी है, तुम काम करके आ जाओ. CGST बाहर आता है, बोलते किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे? फर्स्ट अगेंस्ट CGST एंड देन अगेंस्ट IGST. Not against S, not against U, not against S, not against U. बच्चा तो उसको बोलने का वापस बकेट में चला जा, चुपचाप बैठ जा, वापस आगे. अब अंदर और एक टैक्स है मेरे पास. कौन सा टैक्स है? SGS. उसको बाहर निकालो. उसको बाहर निकालने के बाद बोलो क्या काम है? पहले गो एंड पे द SGST की लायबिलिटी. SGST की लायबिलिटी पे करने के बाद पे IGST की लायबिलिटी. खत्म हो गया तो ग्रेट. खत्म नहीं हुआ तो अभी बकेट में जाना पड़ेगा. S cannot be used for C, S cannot be used for U, not possible. बरोबर है? ओके. नाउ no, IGST can be used ना for C or S or U. और UTGST निकालोगे तो इट विल बी यूज फर्स्ट फॉर UTGST देन IGST. UTGST निकाला तो पहले वो क्या काम करेगा? U का लायबिलिटी, उसके बाद I का लायबिलिटी. अब और एक नखरा है, अब सुनना, समझना. पहले मैंने तो एक कंडीशन आपको सिखा दी, IGST को पहले फिनिश करो. क्या करो? पहले IGST के इनपुट टैक्स को फिनिश करो, तभी बकेट से और कुछ निकलेगा, वरना बाहर कुछ भी आना अलाउड नहीं है. अब थिंकिंग को उल्टा करेंगे. अब सोचेंगे IGST की लायबिलिटी के बारे में. किसकी लायबिलिटी के बारे में? IGST की लायबिलिटी. लायबिलिटी साइड की थिंकिंग करना है. IGST की लायबिलिटी को पे करने के लिए आई एम अलाउड टू यूज फर्स्ट I, then C and then S. To pay IGST liability, the order is fixed. To pay IGST liability, the order is fixed. What is the order? First I, then C and then S. समझा? IGST की लायबिलिटी है यहाँ पे. क्या है यहाँ पे? IGST की लायबिलिटी. यहाँ पे मेरे पास इस साइड में इनपुट टैक्स है. I की लायबिलिटी पे करने के लिए पहले कौन से टैक्स को बाहर निकालूं? I को. वो यूज कर दिया, खत्म हो गया. अब किसकी बारी है? C. वो यूज कर दिया, खत्म हो गया. अब किसकी बारी है? S. Do you understand this? Okay, let's read. We're going to do problems. You'll understand this better with the help of problems. IGST का ITC is used for IGST, then C, then S or UTGST in any order or any proportion. CGST का ITC किसके लिए यूज होता है? C की लायबिलिटी के लिए, फिर I की लायबिलिटी के लिए. SGST का ITC is used for first SGST की लायबिलिटी, फिर IGST की लायबिलिटी. Before using CGST ITC और SGST ITC, finish IGST. IGST का इनपुट टैक्स को पहले फिनिश करो, तभी बकेट से CGST का इनपुट निकलेगा या SGST का इनपुट निकलेगा. समझा क्या? CGST ITC cannot be used for SGST liability. SGST liability cannot be used for CGST liability. To pay IGST liability, क्या सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है? कंपल्सरी. पहले I, फिर C, देन S. देखो, फर्स्ट IGST, देन CGST, देन SGST. बरोबर? Go through it once, come on. Then I want 1 or 2 students to volunteer and come and explain us this in your own words. की जरूर नहीं ये सीक्वेंस में बोलना है, बिना देख के अगर आप बोल सकते हो तो 1 or 2 students can come forward and tell us this quickly.
माइक ऑन है क्या, देखती हूँ कैसा है रही है। हाँ सेल है, रुक उधर चार्जर है उसको बुलाती हूँ ना। कौन आ रहा है तब तक? अरे शिवराज एक मिनट क्लासमध्ये ये रे. हां 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 बरोबर. कौन रहे? आ रहा है. दो बच्चे रेडी है. हे लावून दे ना मला. बरोबर लावलं का बघ. ऑन आहे का? जरा वॉल्यूम पण वाढवा त्याचा. ऐक तुटलं का खालना? याला क्रॅक बसला. ते क्रॅक बसला. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ. थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ. वॉल्यूम थोड़ा. हेलो हेलो. कौन आ रहा है? हु इज कमिंग? यू आर कमिंग. पहले उसको आने दे. आजा. वॉल्यूम बढ़ाओ. क्या हुआ? आजा इधर खड़े हो जा. यस ओके. नाम बता दे तेरा. शिवराज भोरे. ओके हाँ अभी उसको बोलने दो. हाँ बोल. आईजीएसटी का इनपुट बोल ना तेरे को मराठी जैसे भी तू. आईजीएसटी का इनपुट पहले लेने का है तो आईजीएसटी यूज करने का. बाद में सीजीएसटी. पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए लेने का. हाँ ऐसा बोल. पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए लेने का. बाद में सीजीएसटी की. बाद में एचजीएसटी की. देन यूटीजीएसटी की. नहीं नहीं हाँ नहीं बरोबर बोला. लेकिन इट इज इन एनी प्रोपोर्शन एंड एनी ऑर्डर. मतलब आई कैन यूज इट फॉर सी और एस. तो अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर. हाँ अभी तुम रिकॉर्डिंग उसका स्टार्टिंग से चालू करो. आईजीएसटी का आईटीसी लेने के लिए पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी लेने की. बाद में सीजीएसटी की लेने के. बाद में एचजीएसटी की लेने की. और यूटीएचजीएसटी एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन. करेक्ट. सीजीएसटी की लेने की है तो पहले सीजीएसटी की लेने की. लाइबिलिटी के लिए. हाँ लाइबिलिटी लेने की. बाद में आईजीएसटी. हाँ बाद में आईजीएसटी यूज करने का. हाँ. एसजीएसटी का आईटीसी लेने का है तो पहले एसजीएसटी की लाइबिलिटी लेने की. बाद में आईजीएसटी की लेने की. बरोबर. हाँ बरोबर. सीजीएसटी की आईटीसी सीजीएसटी की लाइबिलिटी एचजीएसटी की लाइबिलिटी में नहीं आती. एडजस्ट नहीं होती. हाँ एचजीएसटी की लाइबिलिटी सीजीएसटी की एडजस्ट नहीं होती है. ओके. आईजीएसटी की लाइबिलिटी पे करने का है तो पहले ऑर्डर में पे करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर आईजीएसटी सीजीएसटी एचजीएसटी. वेरी गुड. यस और बराबर. वेरी गुड. और कौन आ रहा है? वेरी गुड वेरी गुड. यू वांट टू कम. सो दीज आर स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी ये नहीं किया है. वांट देम टू कम. ओके कम. So what's your name first? Tell us your name. Radhika. Okay. And there are some rules for ITC credit utilization. The अरे बोलने दे. हाँ. The first IGST liability can be set off Record was somebody. first against IGST liability only, हाँ. and then next it can be with CGST and then SGST, similar in any proportion. Next, if it is a And any CGST order, हाँ. yes, and in any order. If it is CGST liability, then first with the CGST liability and then with the IGST liability. If it is SGST or if it is UTGST, then first with the SGST or UTGST and next Then with with the ITGST. IGST, हाँ. And it can be in
No, it cannot be in any. हाँ, in this only order, correct. And to pay IGST liability, what do we do? To pay IGST liability. First क्या use करेंगे? First IGST and then CGST, then SGST or UTGST. Very good, very good, very good. Anybody else wants to come? Come. You should try. अगर किसी को fear है, जिन बच्चों ने बात नहीं की, I'm very happy. He volunteered, she volunteered. You're coming? Come, you come now. हाँ. ऑन है क्या देख ले माइक. हाँ. Okay. हाँ, you continue. हाँ सर, स्टार्ट कर रही हूँ. तो सबसे पहले हम लेते हैं आईजीएसटी का इनपुट और उससे हम पे करते हैं, मतलब सबसे पहले उससे जाएगी आईजीएसटी की लायबिलिटी और फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी में हम इन एनी प्रोपोर्शन इन एनी ऑर्डर, मतलब जो भी हम लेना चाहें. उसके बाद फिर हम देते हैं सीजीएस, मतलब जब तक हमारा आईजीएसटी ख़त्म नहीं होता है तब तक हम कोई दूसरा मतलब नहीं ले सकते हैं. सबसे पहले हमें आईजीएसटी को ख़त्म करना होगा एंड देन वी विल गो फॉर सीजीएसटी. और सीजीएसटी के लिए हम सबसे पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी पे करेंगे एंड उसके बाद फिर हम आईजीएसटी की लायबिलिटी पे ध्यान देंगे. फिर उसके बाद जब ये सीजीएसटी हो जाएगा तो फिर हम एसजीएसटी लेंगे. पढ़ के दे बोल रहे हैं ना वहाँ से. हाँ. फिर हम एसजीएसटी लेंगे और एसजीएसटी से सबसे पहले हम एसजीएसटी की लायबिलिटी पे करेंगे और फिर उसके बाद हम आईजीएसटी की लायबिलिटी पे करेंगे और फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए फिर आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए हम सबसे पहले आईजीएसटी का सेट ऑफ लेंगे. हाँ, सेट ऑफ लेंगे. उसके बाद फिर सीजीएसटी का लेंगे और फिर उसके बाद एसजीएसटी और देन यूटीजीएसटी. ओके, गुड. साइड बाय साइड. यस, ओके, गुड. ऑल राइट. यू कमिंग. वॉलंटियर, यू कमिंग. आ रहे. अभी हो गया. अभी और कोई बात पे आगे आ जाओ. हाँ, यस. सेम चीज अभी नहीं ना, और कोई आगे करते हैं. हाँ, ओके. कल बोल दूंगी, आपको बोलूंगी कुछ 3-4 आपकी चॉइस से ब्लॉक क्रेडिट बता देना. ऐसे मतलब ऑल 14 नहीं, 3-4 बता देना. तो ऐसे करेंगे. हाँ, है ना. यस, ओके. अब हम थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. कम ऑन. ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. लास्ट 8 days ऑफ द क्लास दैट वी हैव. करेक्ट ना. आज क्या तारीख है? 23 है ना. हाँ, चलो 23rd ना. हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे फटाफट. कम ऑन. ABC and Company Limited registered under GST, registered under GST, सेल्फी बाद में निकालो, is engaged in manufacture of heavy machinery. It procured the following items during the month of July. So we are going to do the working for the month of July. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यहाँ पे जो दिया है जीएसटी पेड का अमाउंट दिया है. कितना जीएसटी पेड है? 5,20,000. ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख. रॉ मटेरियल का 2 लाख. कन्फेक्शनरी आइटम्स, दीज आइटम्स वर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कस्टमर्स इन द कस्टमर मीट ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी. कन्फेक्शनरी मतलब ये जो बेकरीज और ये आइटम्स होते हैं, बेसिकली दिस इज फूड एंड ब्रेवरेजेस. कन्फेक्शनरी इज फूड एंड ब्रेवरेजेस की कैटेगरी में जाएगा. सो ऑल बेकरी प्रोडक्ट्स कम अंडर दैट कन्फेक्शनरीज. ओके, सो बिस्किट्स एंड केक्स एंड ऑल दैट स्टफ. सो दिस इज अ कन्फेक्शनरी. नाउ डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या बोलता है? अंडरलाइन द इंस्ट्रक्शन. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल विथ AB एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. तो आपको जुलाई मंथ के लिए उनका आईटीसी अवेलेबल कितना है ये निकालना है हमें. बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, अज्यूम ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड. मतलब उनके पास टैक्स इनवॉइस है, गुड्स रिसीव हुए हैं और 180 डेज में पेमेंट कर दिया गया है. तो उनके जो भी कंडीशंस है, सप्लायर ने टैक्सेस पे कर दिया, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न भर दिया, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है.
Note, all conditions necessary for ITC have been fulfilled. ABC Company Limited is not eligible for any threshold exemption. मतलब जैसे अगर किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले 20 लाख तक टैक्स नहीं पे करते सर्विसेज के लिए, और 40 लाख तक गुड्स के लिए हम टैक्स नहीं पे करते. यू बिकम लायबल व्हेन यू क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट, और उसके आगे से रजिस्ट्रेशन और उसके आगे से टैक्स पेमेंट चालू होता है. मैंने आपको यहीं पे कॉलम बना के दिया राइट हैंड साइड में आईटीसी का, और नीचे 4 लाइंस है, तो हमें अगर कुछ नोट्स या एक्सप्लेनेशन लिखना होगा तो हम लिखेंगे. पहला, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स. स्टूडेंट्स, दिस कुड बी कैपिटल गुड्स. डू यू थिंक दिस इज एलिजिबल? यस, दिस इज एलिजिबल. ये कहीं ब्लॉक क्रेडिट में वगैरह है क्या? नहीं. तो 5,20,000 का आईटीसी मिलेगा. यस, तो आईटीसी अवेलेबल, ऐसा कॉलम को आप हेडिंग दे दो, आईटीसी अवेलेबल. तो एग्जाम में आप लिखोगे 1, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसका आईटीसी अवेलेबल कितना है? 5,20,000. दूसरा, ट्रक्स यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए व्हीकल्स है तो अलाउड होती है क्या? हाँ, तो आईटीसी मिलेगा 1 लाख. आगे, इफ इट इज रॉ मटेरियल, उसके लिए आईटीसी मिलेगा? हाँ, मिलेगा. कन्फेक्शनरीज, फूड एंड बेवरेजेस, नो, सो डैश. सो टोटल होगा 8,20,000. टोटल आईटीसी इज 8,20,000. करेक्ट. तो यहाँ पे जो स्पेस है देखो नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम में फिर आपको लिखना पड़ेगा कन्फेक्शनरीज दैट इज फूड एंड बेवरेजेस इज अ ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. करेक्ट. यस. सो पहले यहाँ पे लिखेंगे एलिजिबल आईटीसी फॉर एबीसी, कंपनी का नाम एबीसी कंपनी लिमिटेड, फॉर मंथ ऑफ जुलाई इज 8,20,000. एंड उसके बाद नोट इज 8,20,000. बरोबर. उसके बाद नोट, ये मॉड्यूल का लेवल बहुत ही इजी है, इससे थोड़ा हायर लेवल है. मैं आपको एग्जाम का एक आध क्वेश्चन, एक आध पेपर तो आपसे सॉल्व कर रहा ही लूँगी, तब हमको आइडिया आ जाएगा. हाँ, नहीं आज नहीं, क्या आज क्या? नोट में लिखो कन्फेक्शनरी आइटम्स दैट इज फूड एंड बेवरेजेस. कन्फेक्शनरी आइटम्स दैट इज फूड एंड बेवरेजेस इज अ ब्लॉक क्रेडिट. Confectionery items that is food and beverages is a block credit. Is a block credit. बरोबर. अगला, XYZ Limited. Next question. Anybody having problem with the first question? No. Yes. So let's move on to question number 2. XYZ Limited registered under GST is engaged in manufacturing of taxable goods. So वो क्या कर रहे हैं? They are into manufacturing of taxable goods. Compute the ITC available with XYZ Limited for the month of, हमेशा underline month भी underline करना ITC में, क्यों? आपको समझेगा कुछ questions में. So you have to find out ITC for the month of October 2019. You have to find out it for the month of October 2019. From the following particulars, inputs A 1 lakh, one invoice on which GST payable was 10,000 is missing. Accountant ने टैक्स इनवॉइस खो दिया, तो वो 10,000 का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा. यस. सेकंड, इनपुट बी 50,000, उसका जीएसटी का अमाउंट 50,000 है. Inputs are received in 2 installment. First installment is in October. तो first installment अक्टूबर में है, तो मिलेगा क्या ITC? नहीं. जब भी उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा उस मंथ में क्लेम करना. अब आपको ITC इसका नहीं मिलेगा. Capital goods. XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will avail depreciation on full invoice value. Ayo, they want to calculate depreciation on the original cost plus the tax amount. दोनों कैसा मिलेगा, है ना? Either depreciation लेने का या तो set off लेने का. मैंने बोला था देखो ये उनकी गिनी चुनी एडजस्टमेंट से वही बार बार आती है. एकदम अच्छे से करके जाओ, 40 ऑन 40 लेके आने का.
कैपिटल गुड्स के बाद इनपुट सर्विसेज. इनपुट सर्विसेज 2,25,000. One invoice dated 20th Jan 2019 on which GST payable was 50,000. One invoice dated 20th Jan 2019, okay, on which GST payable last year का invoice है, okay. GST payable was 50,000 was received in October 19. तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? चलेगा क्या? अरे व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी? 20th October. 20th October मतलब क्यों? बिकॉज दैट इज द ड्यू डेट ऑफ सितंबर का रिटर्न. सो यू शुड हैव रिसीव दिस बिल इन सितंबर. तुमको लास्ट ईयर का आईटीसी क्लेम करने का. इज देयर अ लास्ट डेट फॉर क्लेमिंग आईटीसी? यस, इट इज 20th October और लास्ट और द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर. विच एवर इज अर्लियर. तो नहीं मिलेगा 50,000 का. भी एक एक लिखवाती हूँ. चलो पहला लिखो. Inputs A, ITC on inputs A 1 लाख है, लेकिन उसमें से क्या हो गया? एक 10,000 वाला जितना इनपुट टैक्स था वो बिल अब से खो गया है, रिकॉर्ड पे नहीं है. अब तो आईटीसी आपको नहीं मिला. आइडियली ऐसे हम कोई नहीं करेंगे, तुरंत एक डुप्लीकेट कॉपी मंगवा के लेंगे. बट ये एग्जाम व्यू पॉइंट से है तो आपको पता होना चाहिए कि बिल नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलता. तो ये आईटीसी कितना आएगा? 90. सेकेंड, इनपुट्स बी, आईटीसी ऑन इनपुट्स बी मिलेगा क्या? अच्छा एक मिनट, ये टेबल के ऊपर पहले तो लिखो. वी आर कैलकुलेटिंग एलिजिबल आईटीसी फॉर विच मंथ? यस, एलिजिबल आईटीसी फॉर अक्टूबर 2019. वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि कुछ गुड्स बाद में आ गए तो उसका आईटीसी बाद में मिलेगा. जैसे इनपुट बी, यू रिसीव्ड ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, तो नाउ अभी हम क्लेम कर सकते हैं क्या अक्टूबर में? नहीं, जब दूसरा और लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा तब क्लेम करेंगे. सो इनपुट बी का आईटीसी डैश नीचे नोट्स में लिखा, मैं आपको डिक्टेट करूंगी, ठीक है, लिख के लेंगे. कैपिटल गुड्स, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स नॉट एलिजिबल. क्यों रे? हाँ, डेप्रिसिएशन ले लिया तूने टैक्स की अमाउंट पे, तूने फुल इनवॉइस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले लिया. करेक्ट? समझ में आ गया? आगे इनपुट सर्विसेज. अब ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो. 1 इनवॉइस डेटेड 20th Jan 2019. अयो मतलब कौन से ईयर का इनवॉइस है? FY 18-19. व्हाट इज द लास्ट डेट टू क्लेम आईटीसी? 20th October. ये अक्टूबर में मिला रे, तुम्हारा मिस हो गया रहेगा. बिकॉज यू शुड हैव रिसीव दिस एटलीस्ट बाय सितंबर, बिकॉज द लास्ट डेट इज 20th October. और एनुअल रिटर्न का भी एक डेट हाँ दी है. सेकेंड नोट. यस यस यस, देखो नोट देखो. All conditions necessary for availing ITC has been fulfilled. Annual return for filing ending 31st March 19. 19 कर दो उधर. रुको हाँ. Yes, make it annual return for 2019 was filed on 15 September 19. Make correction in the dates. तुरंत तुरंत कर दो. सो मेरा लास्ट डेट करेक्शन करने का क्या हुआ? 20 अक्टूबर और 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर. 15 सितंबर तुम्हारा लास्ट चांस हो गया और तुम्हें ये बिल मिला ही अक्टूबर में. तो कौन से 50,000 का ये जो बिल तुम्हें लेट मिला, इसका आईटीसी तुम क्लेम नहीं कर सकते. बट इनपुट सर्विसेज में से 225 आउट ऑफ 2,25,000 माइनस 50,000 कितना आएगा रे? 175. सो एलिजिबल आईटीसी. इजी है स्टूडेंट्स. 90 कितना आएगा रे टोटल? 265. नोट्स. मैं नोट्स डिक्टेट करूंगी. हो गया यहाँ तक आपका? करूँ डिक्टेट? पहला,
ITC is not available if there is no tax invoice. ITC is not available if there is no tax invoice. ITC is not available if there is no tax invoice. ये कौन से पॉइंट के लिए दिया मैंने? इनपुट्स ए के लिए, है ना? इनटू ब्रैकेट इनपुट ए. इनपुट ए के लिए मैंने बोला है क्योंकि वहाँ पे एक 10,000 वाला जो टैक्स था उसका टैक्स इनवॉइस मिसिंग है. सो ITC इज नॉट अवेलेबल इफ टैक्स इनवॉइस इज नॉट देयर. बरोबर. दूसरा, इनपुट बी में क्या प्रॉब्लम है? हाँ ये अच्छा, हाँ मैं क्वेश्चन देखती हूँ ना, एक मिनट. हाँ, इनपुट बी 50,000 आर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट. राइट डाउन. व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, when goods are received in installments, when goods are received in installments, when goods are received in installments, ITC is available on receipt of last installment. When goods are received in installment, ITC is available. ITC is available when? On receipt of last installment. ITC is available on receipt of last installment. Correct? ITC is available on receipt of last installment. बरोबर. आगे. हाँ. The capital goods are not eligible for ITC. Capital goods are not eligible for ITC if depreciation capital goods are not eligible for ITC if what? If depreciation has been taken even on the tax component. If depreciation has been taken even on the depreciation has been taken even on the tax component. Correct? And last note, the last date to claim ITC, the last date to claim ITC is due date of filing, is due date of filing, return, due date of filing the return of September of next FY, due date of filing the return of September of the next FY, into bracket क्या होता है ड्यू डेट? 20 अक्टूबर, 20th October, or filing of annual return, whichever is earlier, or filing of the annual return, whichever is earlier, or filing of the annual return, whichever is earlier. Is that clear? Okay. और उसमें मैं कंटिन्यू करूँगी, स्पेस नहीं होगा तो हेडर यूज़ कर देना. हाँ, कौन से ईयर का बिल था रे वो? FY. एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ती हूँ. बिल डेटेड 20th Jan 2019. हाँ, सो इनवॉइस ऑफ FY 18-19, ITC, ऐसा करो, ITC ऑफ इनवॉइस ऑफ FY 18-19, है ना? ITC ऑफ द इनवॉइस, कौन सा इनवॉइस? ऑफ FY 18-19 can be claimed latest by, can be claimed latest by 20th October 2019, मतलब अगले साल का 20 अक्टूबर, बरोबर, और 15th September 2019, whichever is earlier. So that is 15th September. ये लास्ट डेट है आपको कोई भी पुराने ITC क्लेम करने के लिए. समझा ना? समझा? हाँ,
इसलिए हमने वो लास्ट बिल में से 50,000 माइनस किया, क्योंकि 50,000 का बिल का आईटीसी 50,000 का आईटीसी क्लेम करने का लास्ट डेट निकल चुका है, 15 सितंबर को खत्म हो गया। अब तुम अक्टूबर 19 का वर्किंग कर रहे हो, अभी इसका कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, कम ऑन, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 3। रीड क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी केयरफुली। ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस है सारे, सो प्लीज रीड देम केयरफुली। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3 वेरी केयरफुली। He pays GST under regular scheme, साथ में ही पढ़ते चलो। Mr. X, a supplier of goods, pays GST under regular scheme, मतलब वो composition scheme में GST पे नहीं कर रहा, regular scheme है। He has made the following outdoor taxable supplies in a tax period. Intra-state supplies of goods, intra आउटवर्ड है, इंट्रा मतलब यू विल पे C प्लस S की लाइबिलिटी आएगी, और इंटर मतलब I की लाइबिलिटी आएगी। He has also furnished the following information regarding purchases, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, दूसरा कॉलम ये परचेजेस का है और पहला कॉलम सेल्स का है। आउटवर्ड सप्लाई पे लाइबिलिटी अराइज होती है और इनवर्ड सप्लाई पे असेट होता है जिसका हम सेट ऑफ क्लेम करते हैं। He also has some ITCs with him at the beginning of the tax period, उसके पास ऑलरेडी कुछ ITC बचा हुआ है, तो उसके पास ITC बचा हुआ है जिसका CGST 57,000 है ITC, SGST का 0 है और IGST का 70,000 है। नोट, rate of CS and IGST is 9, 9 and 18 respectively. Both inward and outward supply के जो details आपको question में दिए, both inward and outward supplies are exclusive of taxes wherever applicable. All conditions necessary for claiming ITC have been utilized. Compute the net GST payable by X during the tax period. Make suitable assumptions as required. Okay? Instruction क्या है question का? बोलो क्या करना है? Compute net GST payable. What is GST payable? Outward tax minus inward, output tax minus input tax. ITC लेने का है अपने को। आउटपुट टैक्स किस पे आता है? सेल्स पे। और इनपुट टैक्स किस पे आता है? परचेजेस पे। पहले हम देखेंगे हमारे पास आईटीसी कितना है। स्टूडेंट्स, मेरे पास आईटीसी कुछ इस साल का है जो मैंने गुड्स इस साल खरीदे, प्लस मेरे पास कुछ पुराना है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लास्ट टाइम मेरा परचेजेस ज़्यादा होगा, मेरे पास ज़्यादा सेट ऑफ है, तो वो भी हम अभी ले सकते हैं। तो पहला मुझे काम क्या करना है? अच्छा, मुझे जीएसटी पेबल निकालने का, एग्जाम में सोचने का, जीएसटी पेबल निकालने का। जीएसटी पेबल इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन सेल। सेल्स दिया है क्या? दिया है। देन इनपुट टैक्स इज टैक्स ऑन परचेजेस। दिया है क्या परचेजेस? हाँ, तो सब डेटा है। अच्छा, कुछ और भी दिया है। ये जो दिया है ये ओपनिंग वाला आईटीसी है, लास्ट ईयर का जो अभी मिलेगा वो भी मिलता है क्या? हाँ, वो भी मिलता है। मतलब पहले मेरा काम है आईटीसी कितना अवेलेबल है वो निकालते हैं। ओके, सो फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट द अवेलेबल आईटीसी, राइट? सो लेट्स राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, अवेलेबल आईटीसी। पहले क्या निकालेंगे? चलो जल्दी, अवेलेबल आईटीसी। Do you have one whole page? मतलब half here and half there. Next page also half is there, no? Available ITC. Now, particulars, 3 columns. IG क्वेश्चन में कैसा दिया है? 1 मिनट पहले देखते हैं। नहीं दिया है ना IGST, ऐसा अलग नहीं दिया है, ठीक है। तो IGST CGST, SGST। अवेलेबल आईटीसी की बात हो रही है। पहला मेरे पास क्या है? ओपनिंग आईटीसी। आय कितना है ओपनिंग में? आय है 70। फिर क्या है? CGST 57 और SGST नहीं है। दूसरा क्या ऐड होता है? ऐड ITC ऑन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। फिर ड्यूरिंग द ईयर भी आपने कुछ परचेज किया, उसका ITC भी ऐड होगा।
उसका आईटीसी भी ऐड होगा। करेक्ट। अब सुनो, क्या मैंने परचेजेस किया, इंट्रा स्टेट परचेजेस, इंट्रा है ना, हाँ, तो पहले इसमें ए पॉइंट इंट्रा स्टेट परचेज कितना है, इंट्रा स्टेट परचेज, हाँ, इंट्रा स्टेट परचेज देखना है 2 lakhs। रेट क्या दिया है, 8 and 8, इंट्रा मतलब किधर जाएगा, सी में और एस में, सो 2 लाख का 9%, 18,000 लिखेंगे SGST और CGST में, ये इंट्रा स्टेट है इसके लिए। और बी इंटर स्टेट, इंटर स्टेट परचेज कितना है 50,000, 50,000 का 18% कितना है 9,000, वो लिखेंगे आई के कॉलम में। अब ये टोटल हो गया मेरा। अवेलेबल आईटीसी, और सी का टोटल बताना ज़रा कितना हो रहा है, 5 and 1 6, 75,000, और एस का 18,000। मतलब देखो एस का कम है, हाँ सेट ऑफ हमारे पास, एस का सेट ऑफ कम है हमारे पास, आई ज़्यादा यूज़ करेंगे पहले। विल डिसाइड, we all can have multiple answers but a total tax will be same। किसी को C पेएबल आएगा, किसी को S पेएबल आ सकता है, लेकिन हमारा टैक्स की टोटल लायबिलिटी वो सबकी आंसर मैथमेटिकली सेम आना चाहिए। यू विल अंडरस्टैंड नाउ। सी अवेलेबल आईटीसी आ गया सबका, बरोबर। अब सेकंड पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट हो गया सबका, सेकंड लिखो। हाँ ये इसने लिखा ही नहीं है तुमने। क्या है क्या आज तीनों का उधर? कौन है कौन है? उसकी तबीयत नहीं हुई क्या ठीक अभी भी? हाँ सुनो आगे लिखो। सेकेंड, कॉम्प्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेएबल। अब जीएसटी पेएबल की मेरी लायबिलिटी कब अराइज होती है? पहला, अच्छा पर्टिकुलर्स और बनाओ 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स 3 कॉलम्स। पहले आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। डन है क्या? पहले जीएसटी पेएबल। व्हाट इज जीएसटी पेएबल? आउटपुट टैक्स। पहले क्या निकालेंगे? आउटपुट टैक्स। व्हाट इज आउटपुट टैक्स? टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। अब मेरा आउटवर्ड सप्लाई देखो क्या हुआ, पहले क्या हुआ है आउटवर्ड सप्लाई में? इंट्रा स्टेट। सो लिखो इंट्रा स्टेट। सेल की अमाउंट लेने की, गलती मत करो। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट कितना है? 8 lakhs। 8 lakhs पे 9 and 9%, 72,000 CGST, 72,000 SGST, बरोबर। इंट्रा के बाद इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का कितना है? 3 lakhs। 3 lakhs पे 18%, 54,000 IGST। ये ऐसे पेएबल आ रहा है। अब हमारे पास क्या है? इनपुट टैक्स है। मैंने जैसे बोला था, ये अगर हम अज्यूम करें कि ये बकेट है हमारा, इसमें से पहले क्या निकालोगे? अभी मेरे पास बकेट में
बकेट में क्या क्या है? IGST 79, CGST 75 एंड SGST 18। ऐसे तुम्हारी मर्जी, हाथ से जो भी इंकी पिंकी पोंकी करके पहले जो आएगा वैसे नहीं चलेगा, आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स भी वैसे मिलेंगे फिर तुमको। हाँ, पहले क्या निकालना पड़ेगा? IGST पहले निकालेंगे, IGST। ओके, नाउ सुनो, लेस ITC। पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे IGST। मेरे पास IGST का इनपुट टैक्स बकेट में से निकला कितना? 79। पहले I will have to use here and write down number 1. I'm going to use here. I have decided to, ऐसे एरो ड्रॉ करो यार, नहीं तो तुमको एक बार लिख के हो गया तो तुमको क्या पता पहला कौन सा लिखा था तुमने। हाँ, तो उधर नंबर 1 लिखो पहले। किसके लिए पहले यूज कर रहे हैं? I के लिए। कितना? 54। फिर कैलसी पे लो, 79 माइनस 54 कितना बचा? 25। हाँ सुनो, मेरी मर्जी, सुनो सुनो सुनो, I can use 25 half half, I can use in 80-20, I can use it in any order, any proportion। मेरी मर्जी, मुझे 25 पहले C के अगेंस्ट यूज करना है तो C के अगेंस्ट, S के अगेंस्ट तो S के अगेंस्ट। लेकिन सुनो ना, मेरी कैश लायबिलिटी भी आप देखो ना, मेरा कैश का आउटफ्लो कम करो, थोड़ा सा एनालाइज करने का। अरे मेरे पास ITC C का काफ़ी है तो C में प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये जो IGST है मैंने यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। सो आई शुड यूज़ इट हियर। पहले मैंने कहाँ पे यूज़ किया? I को पे करने के लिए। फिर मेरे पास ऑप्शन है C के लिए करो या S के लिए करो, किसी भी ऑर्डर में, किसी भी प्रपोर्शन में। हाँ, कोई स्टूडेंट और कोई लेगा तो देखो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका टैक्स पेएबल सेम भी नहीं आएगा, अलग आएगा, आपके पास ITC बचा रहेगा। हम कर सकते हैं, पहले आप ये मेथड करो, फिर आपको जो मर्जी लग रही है आप वो करो, देखो उससे आंसर सबसे कम आ रहा है कि आपका, देखेंगे। तो यहाँ पे आई विल यूज 25,000 हियर। अब I खत्म हो गया, खत्म हो गया, बकेट से बाहर C और S आ नहीं सकते। पहले मैं निकाल रही हूँ, वो पहले पूछ रहे हैं मुझसे, हम बाहर तभी आएंगे I खत्म हो गया, तो हम नहीं आने वाले बाहर। I खत्म हो गया क्या? तुम बोलते हो हाँ I खत्म हो गया, अब आ जाओ बाहर। अब निकाले क्या उसको बाहर? हाँ, अब निकालते S को पहले, S को पहले निकालो, या तुमको C को निकालना है? C को निकालो। अयो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू ऑल? ऐसे ए, निकालो, C को निकाला पहले। चलो CGST, CGST है कितना? फिर से C ने पूछा वापस आने के बाद, पक्का I खत्म हो गया ना कि मैं जाऊं अंदर? नहीं नहीं बाबा, I खत्म हो गया है, तू आजा बाहर। समझा क्या? हाँ सुनो, CGST का इनपुट टैक्स कितना है? I can use it first, लेकिन I need only 72, तो मेरे पास ये बैलेंस बचेगा 3000। ये ITC मुझे या तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। देखो C कैन बी यूज टू पे C और इट कैन बी यूज टू पे I को नहीं जरूरत है, I का कम खत्म हो गया, उसकी लायबिलिटी नहीं आ रही है। अब बकेट में से किसको निकालना पड़ेगा? अरे अरे क्यों निकालते? वो C का 3000 यूज करो ना S के अगेंस्ट। इधर लिखूं क्या? इधर 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 लिखूं, लिखूं। ऐसा अलाउड नहीं है। C कैनॉट बी यूज फॉर S, S कैनॉट बी यूज फॉर C। ओके, नाउ अभी बकेट में एक ही बचा है, कौन बचा है? S, उसको बाहर निकालो। क्या? अयो, देख तो, हाँ ठीक है। अब किसको बाहर निकालने का है? SGST। S कितना है? 18। मुझे चाहिए क्या इधर? हाँ पूरा लगने वाला इधर 1, खत्म हो गया इधर ही। अब मेरी लायबिलिटी देखो, दिस इज GST पेएबल इन कैश, ये कैश में देना पड़ेगा आपको, तो IGST भरने की जरूरत नहीं है, CGST डैश और
तो you will have to pay SGST 29,000 in cash and there will be CGST का ITC which will be carried forward 3,000. Okay, there will be CGST input tax ITC 3,000, इसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे. करेक्ट? आ गया सबका? एवरीबडी ओके? आ गया क्या सबका? डन है एवरीबडी? नाउ लिसन ना, लिसन, सुनो. अगर यहां पे आपका आय था 54, आपका CGST है 72 और आपका SGST की लायबिलिटी है 72. आपने पहले आय यहाँ पे यूज कर दिया 54 और आय बचा कितना, 25,000. अगर हम C के लिए यूज करते तो ये IGST खत्म कर दिया, फिर C को बाहर निकाला. C है कितना, 75. लेकिन अब मुझे यूज कितना करना है यहाँ पे, 72 माइनस 25 बोलो, 47. यहाँ पे 47. S के लिए तो यूज नहीं होगा, फिर SGST बाहर आएगा. S के लिए कितना यूज करेंगे, 18,000. अब देखो ना तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कैसे आ रहा है. ये 0, CGST 0 और SGST 54. तुम्हारे पास आज कैश से तुमको 54 देना पड़ रहा है. तुम इसकी खुशी मत मानो कि तुम्हारे पास CGST का ITC है, कैरी फॉरवर्ड है. कितना CGST का ITC है, 75 में से तुमने यूज किया सिर्फ 47, तो बचा कितना, 28. अरे 28 के ITC को कैरी फॉरवर्ड करके खुश क्यों हो रहे हो यार, आज 54,000 देना पड़ेगा. कैश तुम्हारी आज अटक रही है ना, वाई यू गेटिंग योर कैश, वाई यू गोना हैव दैट कैश अननेसेसरी स्टकअप हो रही है आपकी वर्किंग कैपिटल में. इसीलिए ये गवर्नमेंट को अपनी गलती रियलाइज हुई. पहले एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन नहीं था, हाँ अभी 1 फरवरी को किया है. तो कितने सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन आता था, क्यों पहले बोला जाता था कि आय को पहले आय के अगेंस्ट, फिर C के अगेंस्ट, फिर S के अगेंस्ट, ऐसा रूल था. अब बोला है भले C करो या S करो, तुम्हारी मर्जी. वैसे देना चाहिए. देखो नहीं तो कितनी दिक्कत हो रही है. मेरे पास एक टैक्स का ITC है यार, बट आई एम नॉट एबल टू यूज इट, और एक जगह मुझे टैक्स पे करने को लगा रहे हो, क्या फायदा उस ITC का. That is why they have said IGST का input tax can be used to pay IGST की liability first, then you can use it for paying S की liability or C की liability in any order or any proportion. So answers could vary, but if you write something like this in the exam, 0 marks for that. Obviously, your answer has to be the one that is best for the assessee. समझा क्या? ये किसी को डाउट है क्या? Anybody having any doubt? No? Nobody? Okay, next. ये पक्का ये एक मिनट तू क्या लिख रहा है? तू क्या लिख रहा है? तू ये ऑल्टरनेट वाला आंसर लिख रहा है क्या? कोई लिख रहा है क्या ऑल्टरनेट वाला? नहीं ना, ऑल्टरनेट गलत वाला आंसर है. हाँ क्या क्या क्या, कौन सा वाला आंसर? ये मैंने जो ऑल्टरनेट बाजू में लिखा है वो 0 मार्क्स. 0. क्या बोलता है तू? क्यों 0 मार्क्स? बिकॉज योर आंसर हैज टू बी द वन दैट इज बेस्ट. तुमको क्यों दिया है फिर ये ऑप्शन? चूज इट ना प्रॉपरली, ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन. समझा क्या? हाँ ऐसा करेगा क्लाइंट भी छूट जाएगा, ICAI भी मार्क्स 0 दे देगी. हाँ डन है. चलो फोर्थ वन तुम खुद से सॉल्व करो. ये UGST पे करना है, CGST UGST है क्या? UTGST कर दो ना, 3 साल में CA बनाना देखेंगे. उधर U भी मत कर दो, उसको I कर दो. यस I कर दो. मच करने का नहीं, किसको करेक्शन करने में प्रॉब्लम है तो मत करो. हाँ फिर नहीं तो क्या, पहला दिन है क्या क्लास में? चलो खत्म करो जल्दी, सॉल्व इट फास्ट.
क्या रे, क्या बोलता है? शाबाश। क्या IGST की लाइबिलिटी सेट ऑफ करते वक्त पहले I फिर C फिर S, सारे रूल्स याद रख के सॉल्व करना है अपने को। हाँ हाँ, वो अलग है रे, वो अलग जगह का रूल है, ये अलग है, दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है। वो इनपुट टैक्स लेते वक्त पहले I के अगेंस्ट फिर C या S के अगेंस्ट, ये अलग है। लायबिलिटी करते वक्त देखना चाहिए कि ये तुम्हारा सेटिस्फाई हुआ, तू कर, तेरे को आएगा समझ में। डन है क्या? आंसर कितने बच्चों का हो गया है? फिर क्या क्वेश्चन देखने को और पढ़ने को नहीं बोला था, सॉल्व करने को टाइम दिया है? जेरोक्स दिले इसका, बुकशी जेरोक्स कोणाकडे दिली? मग कधी देणार आहे तो? हां, मग जा त्याला। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो। आई खत्म हो गया क्या? हाँ, अब सी को निकालो। अच्छा पहले इसलिए बकेट में से सी को निकालना, क्योंकि आई अगर पेएबल है, अभी आई सुनो यहाँ पे ध्यान दो, पहले तुमने बकेट में से किसको निकाला? IGST को। IGST कितना था? 21,500। तो यहाँ पे कहाँ पे यूज करने का? पहले अगेंस्ट आई, अगर बचता तो C या S में से किसी को भी यूज करते। अब आई खत्म हो गया, अब बकेट में से पहले C को ही निकालो। किसको निकालो? C, क्योंकि IGST की लायबिलिटी पे करने के लिए पहले C लगेगा, तो पहले C को C के लिए यूज करो, फिर बचा हुआ I के लिए यूज करना। अब देखो हम बाहर निकालेंगे CGST। CGST है 1,20,500। फर्स्ट कहाँ पे यूज होगा? 1 C के अगेंस्ट। बचा कितना? बचा कितना? 10,500। सेकेंड यूज होगा 10,500। 1,20,000 का ब्रेकअप देखो मैंने कैसे किया। फर्स्ट आई यूज्ड इट अगेंस्ट C, देन अगेंस्ट I। अब बकेट में कौन बचा है? S। अब S को बाहर निकालो। SGST है कितना? 120,500। पहले किधर? S, फिर बाद में किधर? अयो I को कितना चाहिए और? अच्छा 10,500। वो उतना ही बचा है, सवाल नहीं है। I भी कितना बचा है देखना पड़ेगा ना, तो I ज़्यादा ही बचा है, 55 - 21 - 10,500। सो टैक्स पेएबल, पेएबल इन कैश लिखो 12,500, ये डैश ये डैश। फिर एक बार चेक करने का, डिड यू फॉलो ऑल रूल्स? एक बार चेक कर दो आपका ITC के सारे रूल्स फॉलो हुए क्या। पहले यहाँ तक आ जाओ तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या रूल्स है, देख लो एक बार। पहला IGST का लिख रहे हो क्या? लिखो लिखो। पहला IGST का इनपुट टैक्स ये वाला शुड बी यूज फॉर I, देन फॉर C और S एनीवेयर, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ी।
फिर IGST की लाइबिलिटी पे करने के लिए सीक्वेंस देखो, पहले डिड आई यूज IGST, करेक्ट, देन डिड आई यूज CGST, करेक्ट, एंड देन डिड आई यूज SGST, करेक्ट। फिर CGST को जब बाहर निकाला तो फर्स्ट अगेंस्ट C देन अगेंस्ट I, करेक्ट। SGST को बाहर निकाला तो फर्स्ट अगेंस्ट S देन अगेंस्ट I, correct. So I have followed all the rules. So this is correct. So tax payable in cash is 12,500. Is that clear to everybody? तो अपना concept number 4 done. कौन सा concept हो गया? Concept number 4 is done. I have 2 concepts 5 and 6 remaining. Now we will take a break and after the break we'll continue. Okay? So 8 minutes break. Come back fast.